Okay, so good morning, all of you. Today we are going to start the spreadsheet chapter. Last time we have discussed about the basics of Excel. Now we will use this Excel to insert data and to apply functions, formulas over the data. So in this chapter we will learn about the sorting of data. Sorting of data means arranging our data in ascending or descending order. Okay, so in this we also learn about the mathematical formulas that are available. Okay, so there are two formulas. You can define your formulas also, or there are inbuilt formulas also. So mathematical formulas are there, so you can use that one also. So these mathematical formulas like sum, average, max, and min. These are the functions that you can use to uh, add the range of numbers. You can find the average of that, you can find the maximum from the range of the cells, and you can find minimum also with these functions. These are the functions that we can use in Excel. Okay, now in this chapter we will learn how to analyze the data using charts. So in this chapter we will learn how to create charts and analyze data using that chart. Okay, एंड वी विल लर्न टू एडिट फॉर्मेट एंड प्रिंट वर्कशीट मीन्स जो भी आपने वर्कशीट क्रिएट की है उसको एडिट कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसे करेंगे एंड प्रिंट. सो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एडिट एंड फॉर्मेट? व्हाट डू यू मीन बाय एडिट एंड फॉर्मेट? Yes, what do you mean by edit and format? So edit mainly refers to making changes in our document, and formatting means changing the appearance of the text or the data. जब हम उसका appearance change करते हैं then that is called the formatting. We will discuss it later also, and after completing our work we can print our worksheet. Okay, so let's start with this chapter. So So here with the example, sorting is defined. Sorting, with the help of sorting, we can arrange our data in either ascending or descending order. Okay. So here हमने यहाँ पे data को ascending order में arrange किया है, and here we have arranged the data in descending order. Okay, with the help of sorting. Last time we have discussed it also in my previous video. I show you how to sort the data. Okay. So So this is the option that you can see in the Excel that will help you to sort the data in ascending order. And if you want to arrange your data in descending order, then you have to select this one. Okay, so I will show you it. Okay, so here this is the Excel window, and here there is the option sort and filter on the right hand side. Okay, when you click over here, there's two options, sort A to Z and sort Z to A. So you can select according to your requirement. If you want to arrange your data in descending order, then you have to select this one, and if you want to arrange your data in ascending order, then you have to select this one. Okay, I will show you some example, like I have write Monday and then Tuesday. So then we will select this data and then put a cursor at the corner of this cells and then drag. Okay, so here are our data. Okay, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, now how we can sort our data? First we have to select the data on which we have to apply sorting. जिस भी डेटा पे sorting करनी है उसको पहले select करना है. Then we have to click here, and suppose we want to arrange in ascending order, then we have to click A to Z. देखिए ascending order पहले आता है, then M, then S, S, T और last में W. Okay, if you want to arrange that data in descending order, then we will click this one, Z to A. So now our data will be arranged in descending order. So these are the way by which we can sort our data. Okay, next is what is formula? A formula is an expression which calculates the value of cell. तो फॉर्मूला मेनली क्या है, मैथ्स में हमने पढ़ा है कि एक एक्सप्रेशन होता है फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इट कंटेन वैल्यूज, जैसे कि आप 2, 7, 10 कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. इट कंटेन ऑपरेटर्स मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. ओके,
सेल का एड्रेस होता है, मीन्स आप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो सेल का एड्रेस भी आप मेंशन करेंगे। जैसे आपने करा P1 प्लस B2। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। सो इक्वल टू B1 प्लस B2। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। फॉर्मूला क्या है? एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर प्लस है, सेल एड्रेस हो सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं, +5। ओके, सो इसमें वैल्यूज भी होती हैं, इसमें सेल एड्रेस भी होता है, इसमें ऑपरेटर्स भी होते हैं। ओके, देन देयर इज अ फंक्शन। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला। जो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शन। जैसे कि अगर हम ये सम किया, हम इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सम, और जो भी सेल को हमने प्लस करना है वो इसके अंदर लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे एंड देन प्रेस एंटर। सो दिस इज फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे सम है, एवरेज है, हमने काउंट पढ़ा था, मैक्स पढ़ा था, मिन पढ़ा था, वो आगे भी हम पढ़ेंगे। नाउ रूल्स फॉर राइटिंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। हमेशा फॉर्मूला इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये फॉर्म फंक्शन है, इसको हमने इक्वल टू साइन से स्टार्ट किया है। यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड ये हमारा डिफाइंड फॉर्मूला है, इसको भी हमने इक्वल टू साइन से स्टार्ट किया है। तो फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस बस ये है कि फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज, पहले से बने हुए फॉर्मूला होते हैं, और ये दोनों ही फॉर्मूलाज हैं, इन दोनों के आगे हमने क्या यूज़ किया, इक्वल टू साइन। देयर मस्ट बी सम अरिथमेटिक ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन वैल्यूज। अगर आप वैल्यूज को यूज कर रहे हैं तो उसके बीच में कुछ ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे तो सेलेटर्स लिया, अगर हम 5 और 3 को प्लस करना चाहते हैं तो इनके बीच में हमें क्या यूज करना होगा, वी हैव टू यूज ऑपरेटर। ओके, देन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये ऐड का साइन है, ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, एंड फॉर मल्टीप्लाई वी यूज एस्ट्रिक, and for divide we use this slash, and for exponential means for power, if you want to find out the power of 2 then we have to use this sign, that is called exponential sign। okay, now देखिए यहाँ पे कुछ आपको टाइप का फॉर्मूला टाइप करना है, इसमें इसका आंसर लिखना है। जैसे कि हमें ऐड करना है A3 एंड D3 इन G1, तो G1 में हम लिखेंगे इक्वल टू एंड A3 प्लस D3। okay, so this is a way by which can add this values in G1। तो G1 में हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप इन सबका फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। So mainly you have to prepare the expression for these statements। now type the result, टाइप द फॉलोइंग फॉर्मूला एंड राइट द रिजल्ट। इसका रिजल्ट आपको फाइंड करना है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें बॉडमास टूल हम फॉलो करते हैं। ओके, जब भी हम, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि वी हैव टू यूज द बॉडमास टूल फॉर यूजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, सो इसका अगर आंसर हम निकालेंगे तो 4 + 5 क्या होता है, 9, एंड 9 की पावर क्या है, 2। तो 9 इंटू 9 आंसर इज 81। okay, so you can find the answer of these also। now fill handle, what is fill handle? जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली हमारा डेटा डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा जनवरी एंड देन फरवरी, अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द all the series, we can select these two cells and then place our cursor at the bottom of these two cells, and when we place our cursor here then the sign of this cursor will change to this plus sign, and then we have to click and then drag. When we will drag, it will automatically find out the series। okay, suppose I write 2 comma 4, 2 and 4, now I want to find out the series of this, then we will click and drag, so we can find the series also। okay, 15 then 30, and then if you want to find the series then first we have to select and then place a cursor at the bottom of the these two cells and then drag। ओके, तो इस तरीके से हम सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1 किया एंड देन 2 किया एंड देन क्लिक करा एंड ड्रैग किया, तो इट विल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट द सीरीज। ओके, अब हम हमेशा दो सेल्स को ही क्यों यूज करते हैं, एक से क्यों नहीं करते? अगर हम देखें एक से करेंगे तो 5
अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इसके नेक्स्ट सेल में कितना इंक्रीमेंट करना है। ओके, अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो इट ऑटोमेटिकली फाइंड आउट द सेम टाइप ऑफ सीरीज। तो दो सेल्स में वैल्यू प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि हमें नेक्स्ट क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना इंक्रीमेंट करना है। सो इट विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स एंड देन फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द सीरीज। ओके, अगर हम यहाँ पे जनवरी लिखते हैं, ओके, एंड देन वी विल ड्रैग, सो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है क्योंकि ये क्या है, नोन है कि जनवरी के बाद फरवरी मार्च ही आएगा। ओके, बट 5 के बाद क्या आप लेना चाहते हैं, 6 7 8 लेना चाहते हैं या जो भी लेना चाहते हैं, जैसे अगर हमने लिखा 5 6, ठीक है, अभी आपको सीरीज फाइंड आउट करके दे सकता है क्योंकि देयर इज अ difference between two numbers. Okay, so this is a way by which we can find out the rest of the series with the help of fill handle। तो ये fill handle कहा जाता है जिसके हेल्प से हम rest of the series find out कर सकते हैं। so fill handle क्या है, wherein we don't have to type the formula, इसमें हमने formula नहीं लिखना है। fill handle is used for generating a series of numbers, अभी हमने numbers का series find out किया था, so with the help of fill handle we can do that। डेज हम फाइंड कर सकते हैं, मंथ्स हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इट ऑल्सो यूज टू कॉपी द फॉर्मूला एंड फंक्शन। अब हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया और वो हम सारे सेल्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ फिल हैंडल कॉपी कर सकते हैं। ओके, सो फिल हैंडल विल हेल्प यू टू कॉपी द फॉर्मूला, ओके, और फंक्शन। नाउ फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फॉर्मूलाज। ओके, सो फंक्शन आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज, ये पहले से डिफाइन किए गए फॉर्मूलाज होते हैं या बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, सो फॉर्मूलाज दो तरीके से हो सकते हैं, यू कैन डिफाइन योर ओन फॉर्मूलाज और फंक्शन आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला, ये पहले से ही आपके फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं। नाउ Now, how to find out the chart? So for this, first we have to insert the data. First we have to insert the data. Uh, so here I will write the data, maths, English, and then Hindi. Okay, and here I have written subjects. Okay, and names also। Okay, so names हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे हमें whole noun is Sumit Rupam। Okay, now we can write the marks also, 85, 54, 63। So here we have written the marks for the maths subject, and then we will write the marks for English subject। Okay, so here I will tell you how to find out the calculate find out the sum of these numbers, or how to find out the percentage of these numbers। Okay, so now we have written the data here। Now we want to find out the sum, यानी कि total, we want to find the total। So for this we can use the function equal to then sum, SUM। So sum is displayed here। Now we have to double click this one। Now we have to select the range of the cells on which we have to calculate this। Okay, so हमने यहाँ पे cells को select कर लिया and then press enter। Okay, when we press enter, it will automatically calculate the sum of these three subjects। अब देखिए इनका अगर आप sum करेंगे तो ये 208 ही आएगा। Okay, so with the help of this we can find out the sum of these मार्क्स। ओके, आमिर का हमने जो टोटल फाइंड किया वो आया हमारा 208। अब यही फॉर्मूला अगर हमें सब में लगाना है तो इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, सो फॉर रिड्यूसिंग आवर टाइम वी कैन यूज द फिल हैंडल। फिल हैंडल कैसे यूज करते हैं, वी हैव टू प्लेस आवर कर्सर एट द कॉर्नर या बॉटम ऑफ द सेल। Now click and then drag, so it will automatically copy the formula in other cells also। So
With the help of this fill handle, we can calculate the marks of total marks of other students also. Okay. Now we want to find out the percentage. Percentage परसेंटेज वी हैव टू फाइंड परसेंटेज का फॉर्मूला हमें लगाना है परसेंटेज का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया था फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूला देखिए फंक्शन हमने यूज़ किया था क्या यूज़ किया था सम और D7 से F7 को हमने प्लस किया था ओके तो ये हमने लगाया था फंक्शन दैट इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला नाउ अब हम कुछ फॉर्मूला डिफाइन करेंगे आप कर सकते हैं परसेंटेज के लिए भी प्री डिफाइंड यूज़ कर सकते हैं बट हम यहाँ पे अपना डिफाइन करेंगे फंक्शन तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वल टू परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है जो हमारा टोटल होता है टोटल को सेलेक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट हैं 300 तो 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 300 लिखा हमने और जो भी आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से ओके यही तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज फाइंड करने का एंड देन प्रेस एंटर तो यहाँ पे परसेंटेज आ गई 69 अब हम चाहते हैं सभी का परसेंटेज फाइंड करना तो ये हमने सभी का परसेंटेज फाइंड करा विद द हेल्प ऑफ yes with the help of fill handle okay now अब देखिए सपोज सुमित ने अपने इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज कराए तो इंक्रीज करने के बाद उसके 14 के हो गए 44 ओके तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल भी चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पे परसेंटेज भी हो जाएगा जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली इट विल चेंज अब हमने यहाँ पे 44 की जगह हमने कर दिया 55 तो देन अगेन इट विल चेंज अगर हमने यहाँ पे कर दिया 56 देन अगेन इट विल चेंज ओके 59 कर दिया हमने तो अगेन इट विल चेंज ओके सो इस तरीके से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता है आपका ठीक है नो ओके सो अभी जो हम ये मार्क्स चेंज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एडिटिंग एडिटिंग मीन्स क्या होता है जब भी हम कुछ चेंज करते हैं अपने डेटा में दैट इज कॉल्ड एडिटिंग ओके नाउ व्हाट इज फॉर्मेटिंग अब फॉर्मेटिंग भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इसको थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज करना है तो हम इसमें थोड़ा सा कलरफुल कर सकते हैं इसको है ना कलरफुल कर सकते हैं इसमें सेल का बॉर्डर भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे ओके ओके नाउ इट विल लुक something better okay now we can increase the size of this data also okay हमने ये डेटा का साइज इंक्रीज कर दिया सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं डेटा का अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं ओके वी आर चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डेटा ओके यहाँ पे हमने डेटा का अपीयरेंस चेंज कर दिया अब ये सब कुछ एक जैसा लग रहा है तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं ओके जैसे यहाँ से हम इसको ब्लू कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको नेम्स को कर देते हैं ग्रीन ओके एंड नाउ जो हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई की थी इसका फॉर्मेट पेंटर के साथ यूज़ करके हम इसको सब पे अप्लाई कर देते हैं ओके फॉर्मेट पेंटर एंड दिस ओके सो ये स्टाइल भी चेंज कर दिया है नाउ okay so this is called formatting formatting means changing the appearance of our data and editing means making changes in our data अभी हमने अगर डेटा में चेंजेस करना है तो दैट इज कॉल्ड एडिटिंग और जब हम डेटा को कलरफुल कर रहे हैं उसका अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं दैट इट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग अभी देखिए जो भी नंबर्स होते हैं वो तो सारे कहाँ होते हैं राइट साइड में अलाइन होते हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में अलाइन होते हैं अब हम चाहते हैं इन सबको एक साथ अलाइन करना उसको हमने कर दिया सेंटर में अभी हमारा डेटा सेंटर में अलाइन हो गया ओके so we can change to that also now हाँ अब हमें चार्ट प्रिपेयर करना है फॉर प्रिपेयरिंग अ चार्ट फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट आवर डेटा हमने डेटा को सेलेक्ट किया देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देयर इज अ ऑप्शन चार्ट हियर ओके यहाँ पे चार्ट ऑप्शन है अब जो भी चार्ट हमें क्रिएट करना है उस पर हम क्लिक करेंगे जैसे हम कॉलम यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं लाइन चार्ट अगर हम चाहते हैं तो लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं ओके and if we want to create the bar 2D column chart we can prepare that also और अगर हम चार्ट चलिए यही हम चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं 2D कॉलम में सो देखिए ये हमारा चार्ट प्रिपेयर हो गया अब इसमें हम फाइंड कर सकते हैं ये जो येलो लाइन है ये आपको इंडिकेट करेगी टोटल तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल किसका ज़्यादा है टोटल अभी का ज़्यादा है तो अभी देखिए अभी कहाँ पर है यहाँ पे अभी 230 है सबसे हाईएस्ट 230 अभी गई है ओके
अगर हम चाहते हैं मैथ्स के मार्क्स कंपेयर करना, तो मैथ्स के देखिए हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो मैथ्स के अमित के आ रहे हैं। अमित के अगर हम देखते हैं 85 है और किसी के भी नहीं है ना, तो इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन एनालाइज डेटा विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। ओके, और इस चार्ट को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, एंड इसका आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और दैट चार्ट विल हेल्प यू टू एनालाइज द डेटा। ओके, और ये आप किस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, so that will help you to format the data. Okay, now next topic is, तो ये हमारे चार्ट्स है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट। चार्ट क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है, अभी हमने डिस्कस किया था ना। फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा, देन वी हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, एंड देन go in chart group, and then you have to select the chart that you want to apply for your data. Okay, तो देखिए यही स्टेप्स यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा, जो भी आपका डेटा है उसको सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन चार्ट, और जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। ओके, ये हमारा प्रीवियस या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि हम जो वर्क कर रहे हैं एक्सेल में कर रहे हैं, तो एक्सेल में वो वर्क हमारा और सिंपल हो जाता है। ओके, नाउ सेल का एडिटिंग, एडिटिंग ऑफ सेल, सेल में एडिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमने सेल में लिखा है यहाँ पे अभी। ओके, अभी ठीक है। अब हम अभी का, अगर हम अभी की जगह लिखना चाहते हैं सुमित, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे इस पर और लिख देंगे सुमित, तो इट विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस द डेटा। ओके, जो पुराना डेटा है उसको रिप्लेस करेगा। बट अगर हमें इसको रिप्लेस ना करके हम चाहते हैं सुमित को सुमिता करना चाहते हैं, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे हम इस सेल पे, देन हमारा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होगा, देन वी विल प्लेस ए। ओके, तो हम डेटा में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, या तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या हम उस पर डबल क्लिक करके उस डेटा को एडिट कर सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या है, डेटा को डिलीट करना। डिलीट कैसे करते हैं, सिंपली इसको सेल को सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, सो वी कैन रिप्लेस एंड ओवरराइटिंग। रिप्लेस एंड ओवरराइटिंग के लिए आपको सिंपल क्या करना है, सिंगल क्लिक। अगर आप उसमें मेकिंग चेंजेस करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डबल क्लिक। ओके, नाउ कट कॉपी, कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या करता है, जो भी आपका डेटा है उसकी एक और कॉपी क्रिएट कर देता है। ओके, और कट पेस्ट क्या करता है, इट विल मूव द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपने एक जगह से कट किया और दूसरी जगह उसको पेस्ट कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, मेनली यू आर मूविंग द डेटा, एंड व्हेन यू आर यूजिंग कॉपी पेस्ट कमांड, यानी कि आप उसकी एक और कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नाउ फॉर्मेटिंग अवर वर्कशीट, अभी हमने फॉर्मेट किया था ना वर्कशीट को, कलरफुल किया था, सो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फॉर्मेटिंग कुछ टूल्स हैं, इसमें हम उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं। अभी हमने सेंटर अलाइन किया था ना, और यहाँ पे कुछ आपके ये फॉर्मूलाज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर, अभी हमने टेबल के अराउंड बॉर्डर लगाया था। फॉन्ट को हमने कलर प्रोवाइड किया था, बैकग्राउंड कलर भी आप लगा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। सो दीज आर द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ओके, फॉर्मेटिंग टूल्स। नाउ प्रिंटिंग अ वर्कशीट, वर्कशीट को कैसे प्रिंट करना है। सो फॉर प्रिंटिंग द वर्कशीट यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल बटन, जैसे यहाँ पे हमने फाइल पे क्लिक किया, एंड देन गो टू द प्रिंट ऑप्शन। एंड देखिए जब हम प्रिंट करेंगे तो इसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसमें परसेंटेज नहीं आ रहा, तो आप इसको यहाँ से सही कर सकते हैं। इसको लैंडस्केप कर देते हैं, तो देखिए अब आपका ये डेटा पूरा विजिबल है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम और चीज़ कर सकते हैं, फिट सीट ऑन वन पेज, एक पेज पे ही पूरा डेटा आ जाएगा। तो देखिए अब ये चार्ट भी आ रहा है, इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको प्रिंट पे करना है, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपका अवेलेबल है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्रिंट ऑप्शन, योर सीट विल बी प्रिंटेड। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल में तो आपको ये बहुत सारी लाइन्स दिख रही थी ना, यहाँ तो देखिए ये बहुत सारे सेल्स दिख रहे थे, जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो सिर्फ आपका यही डेटा आपको विजिबल होता है जो आपने क्रिएट किया है। ओके, रेस्ट ऑफ विल बी एलिमिनेटेड। ओके, तो इस तरीके से ये आपका डेटा विजिबल हो रहा है। सो आई थिंक नाउ you can use the Excel in efficient way, and you are aware how to use Excel
and what is the uses of this Excel. Okay, now we will continue our chapter. So प्रिंट करने के लिए सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पी भी यूज कर सकते हैं. ओके, so now our chapter is complete. So these are the things that we have to discuss in this chapter. So इस तरीके से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं, उसमें फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. तो इतनी सारी चीज़ें हमने इस क्लास में डिस्कस की. नाउ अब आपको इसका प्रैक्टिस करना है. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये इजीली लगेगा और इसको आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको यूज़ करना होता है, आपको चार्ट क्रिएट करना होता है, डेटा पे वर्क करना होता है. So that will be more useful for you. Okay, so thank you for today class.